وبرکاتہ۔ میں خان عبدالصمد آج جماعت دہم جغرافیہ کا دوسرا سبق محلوقو اور وسط لوکیشن اینڈ ایکسٹینٹ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ محلوقو اور وسط کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم برازیل اور بھارت کا محلوقو اس کا پھیلاؤ کے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، بھارت اور برازیل یہ دنیا کے دو اہم ممالک ہیں، دو الگ الگ بر اعظموں کو اہم ملک ہیں۔ بھارت بر اعظم ایشیا کا اہم ملک ہے جو مکمل طور پہ شمالی نصف کرے میں واقع ہے۔ برازیل بر اعظم جنوبی امریکہ کا اہم ملک ہے جو تھوڑا حصہ شمالی نصف کرے میں اور زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرے میں واقع ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں آپ گلوب میں نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان سے خط استوا گزر رہا ہے۔ خط استوا کے شمال میں جو کہ 0 ڈگری کی جس کی عرض البلد کی پیمائش ہے 0 ڈگری کا خط استوا، اس کے شمال میں مکمل طور سے بھارت واقع ہے، اس لیے بھارت شمالی نصف کرے میں، لیکن برازیل جو کہ جنوبی نصف کرے میں ہے، خط استوا کے اوپر تھوڑا سا حصہ یعنی 5 درجہ عرض البلد برازیل کا شمالی نصف کرے میں ہے اور زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرے میں ہے، اس لیے برازیل شمالی اور جنوبی دونوں نصف کروں میں واقع ہے۔ آج ہم بھارت کا محلوقو پڑھیں گے کہ اور بھارت کا پھیلاؤ عرض البلد اور طول البلد میں کتنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں گلوب پر عرض البلد اور طول البلد کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی علاقے کے محلوقوں کو بتانے کے لیے ان دو فرضی خطوط کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم عرض البلد اور طول البلد کہتے ہیں۔ گلوب پر یہ دو طرح کے خطوط نظر آ رہے ہیں، جو دائرہ نما گھیرے ہوئے گلوب کو جو دائرہ نما گھیرے ہوئے ہیں یہ خطوط عرض البلد ہیں۔ یہ عرض البلد خطوط یہ درمیان سے 0 ڈگری کا خط استوا گزرا ہوا ہے جو زمین کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہے، اس کی پیمائش ہے 0 درجہ عرض البلد جس کو ہم خط استوا یا ایکویٹر کہتے ہیں۔ خط استوا کے شمال میں 90 عرض البلد، اسی طرح خط استوا کے جنوب میں 90 عرض البلد، اس طرح سے عرض البلد کی کل تعداد 180 ہو گئی۔ اور طول البلد دوسرے طرح کے خطوط ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں قطبین سے شمال سے جنوب کچھ خطوط کھینچے گئے ہیں، ان خطوط کو ہم طول البلد کہتے ہیں، ان کی تعداد کل 360 ہے، یعنی 180 خطوط مشرقی نصف کرے میں، یعنی یہ درمیانی جو طول البلد ہے اس کے مشرق میں 180 طول البلد ہے، اسی طرح اس درمیانی طول البلد کے مغرب میں 180 طول البلد، کل تعداد ہو گئی 360۔ عزیز طلبہ، ہم انہی طول البلد کا استعمال کسی بھی علاقے کے محلوقوں کو ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بھارت کا محلوقو، بھارت شمالی نصف کرے میں واقع ہے جس کی پیمائش 8 درجہ شمالی عرض البلد سے لے کر کے 37 درجہ شمالی عرض البلد اور طول البلدی پھیلاؤ اس کا 68 درجہ سے لے کر کے 97 درجہ مشرقی طول البلد۔ ہم مشرق اور مغرب یا شمال اور جنوب کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ عرض البلد اور طول البلد کے متعلق ہم نے دیکھا یہاں پر خط استوا کے شمال میں جو عرض البلد ہے اس کے لیے ہم شمالی عرض البلد، خط استوا کے جنوب میں جو عرض البلد ہے اس کے لیے جنوبی عرض البلد، اسی طرح جو پرائم میریڈین یعنی درمیانی طول البلد ہے اس کے مشرق میں جو طول البلد ہوں گے اس کو مشرقی طول البلد اور اس کے مغرب میں جو طول البلد ہوں گے ان کو مغربی طول البلد کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ، بچے جو ہے کچھ غلطیاں کرتے ہیں درجے کی کو پڑھنے کے لیے، جیسے کسی علاقے کا اگر فرض کیجئے کہ کسی علاقے کا عرض البلدی پھیلاؤ 5 درجہ 10 منٹ اور 25 سیکنڈ ہے تو اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا۔ بچے غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ اس کی اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار کو ملا کر کے پڑھتے ہیں، اگر اس عدد کو میں ملا کر پڑھوں تو 51,025 ہوگا جو کہ غلط ہے، یعنی اس طرح سے اگر لکھا ہوا ہے عرض البلدی پھیلاؤ یا طول البلدی پھیلاؤ تو اس کو پڑھیں گے 5 درجہ 10 منٹ 25 سیکنڈ۔
यानी 5 के ऊपर छोटा सा नुक्ता या छोटा दायरा होगा जिसको दर्जा कहते हैं। 10 के ऊपर एक छोटी लकीर, खड़ी लकीर होगी जिसको मिनट की अलामत है। इसी तरह 25 के ऊपर 2 छोटी लकीरें नज़र आ रही हैं जो सेकंड की अलामत है। तो इस तरह इसको हम 5 दर्जा, 10 मिनट और 25 सेकंड पढ़ते हैं, क्योंकि एक दर्जे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 25 सेकंड होते हैं। तो ये हुई भारत का कि अर्जुल बल्दी और तूलुल बल्दी फैलाव। तलबा, हम भारत का अर्जुल बल्दी और तूलुल बल्दी फैलाव इस नक्शे पर देखते हैं। भारत शुमाली निस्फ कुर्रे में 8 दर्जा 4 मिनट, 8 दर्जा 4 मिनट शुमारी अर्जुल बलद से लेकर के 37 दर्जा 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद तक फैला हुआ है। 8 दर्जा 4 मिनट जो जनूबी शुमाली अर्जुल बलद है वो कन्याकुमारी से होकर गुज़रता है, और 37 दर्जा 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद ये कश्मीर की सरहद से होकर गुज़रता है। इसी तरह तूलुल बल्दी फैलाव गुजरात की सरहद से लेकर के, यानी 68 दर्जा 7 मिनट मशरकी तूलुल बलद गुजरात की सरहद से गुज़रता है, जो कि मशरिक में अरुणाचल प्रदेश के मशरकी किनारे तक 97 दर्जा 25 मिनट मशरकी तूलुल बलद तक फैला हुआ। यानी भारत का अर्जुल बल्दी फैला हो गया 8 दर्जा 4 मिनट शुमाली अर्जुल बलद से लेकर के 37 दर्जा 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद, और तूलुल बल्दी फैला हुआ 68 दर्जा 7 मिनट मशरकी तूलुल बलद से 97 दर्जा 25 मिनट मशरकी तूलुल बलद। ये तो भारत का तूलुल बल्दी फैला हुआ। अब हम भारत का सियासी नक्शा देखेंगे और इसकी सियासी तकसीम पढ़ेंगे कि भारत कुल 28 रियासतों और 8 मरकज़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। भारत में ये 28 रियासतें और 8 मरकज़ी इलाके हैं, क्योंकि हालिया दिनों में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा ख़त्म करके उसके 2 मरकज़ी इलाके बनाए गए। जम्मू कश्मीर पहले एक रियासत थी, लेकिन जम्मू और लद्दाख 2 अलग अलग मरकज़ी इलाके तस्वूर किए गए। इसी तरह से दूसरी बड़ी तब्दीली है वो दमन और दीव को मिला करके एक मरकज़ी इलाका बनाया गया। पहले दमन और दीव तो अलग अलग मरकज़ी इलाके थे, अभी दमन और दीव को एक मरकज़ी इलाका बना गया। इस तरह से भारत में रियासतों की तादाद 28 हुई, मरकज़ी इलाकों की तादाद 8 हुई। मरकज़ी इलाके दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, पांडिचेरी, चंडीगढ़, ये इलाके शामिल हैं। भारत की सरहद किन ममालिक से लगती है? भारत में 2 तरह की सरहदें हैं, एक ज़मीनी सरहद और दूसरे आबी सरहद। भारत की ज़मीनी सरहद जिन ममालिक से गुज़रती है, मगरिब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यानी मशरिक़ में बांग्लादेश और म्यांमार है, शुमाल में भूटान, नेपाल और चीन है, मगरिब में पाकिस्तान है। इसी तरह से भारत के जुनूब में एक छोटा सा मुल्क श्रीलंका वाक़ है, जो मुकम्मल तौर से जज़ीरा है। दूसरी तरह की सरहद भारत की आबी सरहद है। भारत में आबी सरहद की लंबाई तकरीबन 7600 किलोमीटर है, जो काफ़ी लंबी सरहद है। भारत का जो जुनूबी हिस्सा है वो मुसल्लस नुमा है, जिसको हम जज़ीरा नुमा कहते हैं। जी तलबा, भारत का ये जुनूबी हिस्सा 3 समंदरों से घिरा हुआ है। मशरिक़ में बहर बंगाल, जुनूब में बहर हिंद और मगरिब में बहर अरब। इस तरह ये भारत के 3 तरफ से पानी से घिरी हुई आबी सरहद हुई, और यहीं पर ये 2 मरकज़ी इलाके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी वाक़ हैं। ये तो भारत की सरहद हुई। इसी तरह से भारत में रकबे और उसकी वसत को अगर देखें
तो भारत दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, यानी भारत से 6 ममालिक बड़े हैं, 7वां नंबर भारत का है। इसी तरह से आबादी के लिहाज से देखें तो भारत की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का 2.17% है, यानी आबादी भारत की दुनिया की आबादी का 17% है और रकबा 2.4% है। इसी तरह से भारत 7वां बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से और आबादी के एतबार से दूसरा बड़ा मुल्क है। भारत का कुल रकबा तकरीबन 32.87 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। तो अजीज़ तलबा, भारत का महलों को और भारत की वसत ये आपके सामने पेश की गई। भारत के जो पड़ोसी ममालिक हैं, ये भारत और भारत के दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं सार्क तंजीम के हिस्सा हैं। हम इसकी तफसील बाद में पढ़ेंगे। भारत की दारुल खिलाफा दिल्ली है, यानी इसकी राजधानी दिल्ली है, जो एक मरकज़ी इलाका भी है। इसी तरह ये भारत की 28 रियासतें हैं और 8 मरकज़ी इलाके हैं। भारत के शुमाली हिस्से में जो ममालिक वाक़े हैं ये हमने बताया आपको, चीन, नेपाल, भूटान। इसमें 2 ममालिक शुमाली हिस्से में वाक़ नेपाल और भूटान, इनकी ख़ुसूसियत ये है कि 3 तरफ से इनकी सरहद भारत से लगती है। नेपाल शुमाल को छोड़ करके, यानी जुनूब, मशरिक़ और मगरिब तीनों सिमत से भारत से घिरा हुआ है और शुमाली सिमत चीन से लगती है। इसी तरह एक छोटा सा मुल्क है पहाड़ी भूटान भी जुनूब, मशरिक़ और मगरिब में से भारत से घिरा हुआ है, शुमाल में चीन से घिरा हुआ है। इसी तरह बांग्लादेश की तीनों सरहदें भारत से लगी हुई हैं, यानी बांग्लादेश की मशरक़ी, मगरबी और शुमाली सरहद भारत से लगी हुई है और जुनूबी सरहद आबी सरहद है। तो ये थी तफसील भारत के महलों को तबई साख्त। तबई साख्त पढ़ेंगे अगले सबक में, भारत के महलों को और वसत की। तो अजीज़ तलबा, ये पहला हिस्सा था भारत के फैलाव का और उसके महलों का। हम दूसरे हिस्से में इंशाअल्लाह ब्राज़ील का फैलाव, ब्राज़ील का महलों को, उसकी वसत, रकबा, उसके पड़ोसी ममालिक, इसके अलावा भारत और ब्राज़ील के तक़ाबुली मुताला भी हम पेश करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात को बयान किया जाएगा। उम्मीद है इस मालूमात की बुनियाद पर आप इस सबक को बेहतर तौर से मालूमात हासिल करेंगे और हम जल्द ही इसका दूसरा हिस्सा लेकर के हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।